Welcome to the Adhuna project, and today we'll be discussing about quality maternity and childbirth. We are going to discuss role of healthcare worker. So please give answer in English as well as in Hindi or mix. Please give a brief introduction of quality care and positive childbirth experience, Dr. Jyoti. So first we should know what is the definition of quality of care. WHO define it as quality care in healthcare is the care that is effective, efficient, equitable, timely, patient-centered and safe. And it is having so much of importance because it is having direct impact on maternal and neonatal outcome, ethical obligation to provide care that promotes safety, dignity and respect for women and families, implication for public health and health system strengthening. And this positive childbirth experience is defined as one that fulfill or exceed a woman's prior personal and socio-cultural belief and expectation. It means उस पर्टिकुलर पेशेंट, उस महिला ने अपने डिलीवरी के बारे में क्या एक्सपेक्टेशन करके रखी है, वो कैसा चाहती है, बिकॉज इट इज़ हर राइट व्हाट शी इज़ थिंकिंग टू टेल द डॉक्टर एंड उसके सारे एक्सपीरियंस जो उसने आस पड़ोस से लिए हैं, अपने रिलेटिव से लिए हैं, वो उसके लिए अच्छे से अच्छा करना चाहती हैं. एंड एक्चुअली इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रीमिस दैट मोस्ट वुमेन वांट a physiological labor and birth and to have a sense of personal achievement and control though involvement in decision making even when medical intervention are needed and wanted. And during healthcare childbirth, the healthcare facilities actually it reflects all the things. आपके हॉस्पिटल का बिल्डिंग कैसा है, मीन्स फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सप्लाईज कैसी हैं, मैनेजमेंट कैसा है और ह्यूमन रिसोर्सेज उनको कितना नॉलेज है. ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स आपका स्टाफ, नर्सेज, मिडवाइफ्स, कंपेनियन एंड उनका स्किल एंड कैपेसिटी डील विथ प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ कितना है, उन्हें कितना नॉलेज है इस चीज़ के बारे में. इट फ्रेमवर्क्स एंड आइडेंटिफाइज 8 एलिमेंट्स and actually it highlights the dual dimension of care. These dual dimensions are provision of care and experience of care. Then what is the provision of care? It ensures evidence-based routine and emergency practices. This part related to quality of care and essential practices will be covered in this session. And then experience of care, it emphasizes dignity, effective communication, emotional support for women and their families. और फिर यहीं आती है बर्थ कंपेनियन, आपके स्टाफ का स्किल कैसा, उसका कम्युनिकेशन स्किल है, आप कितना बर्थ कंपेनियन को अलाउ करते हैं लेबर रूम में, वो कितना सपोर्ट कर सकता है आपके पेशेंट के लिए. एंड WHO ने एक हाईलाइट करके रखा है अपने फ्रेमवर्क में कि एक्सपीरियंस ऑफ केयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एज क्लिनिकल केयर प्रोविजन तो है ही, पर आपका बर्थ कंपेनियन उस पेशेंट को, उस महिला को इमोशनल और मेंटल सपोर्ट देता है और फिर इसलिए आपका पेरिनेटल आउटकम बहुत अच्छा आता है. एक्चुअली क्लिनिकल इंटरवेंशन टू ऑप्टिमाइज द क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइडेड द वुमेन एंड हर फैमिली by functioning the midwifery programs also. We have to train the midwives also. और बर्थ कंपेनियन में भी हस्बैंड भी होता है, सास भी होती है, कई बार फ्रेंड्स होते हैं, कई बार आपकी सिस्टर, ननंद कोई भी हो सकती है. अलग अलग सेटिंग में अलग अलग सोशियो कल्चरल एथनिसिटी सब जगह डिफरेंस रहता है, तो आपके मिडवाइफ, आपका स्टाफ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल में अच्छा होना चाहिए. थैंक यू. So you have rightly mentioned, Dr. Jyoti, this is the happiest moment for father and mother, and they should feel, mother should feel safe and happy moment and positive experience. Yes, the emotional support is very very important for giving the patient by the companion actually. Thank you, Jyoti. Thank you. So we move to our second question, and this is, what are some of the best practices that the private sector can adopt to improve the quality of care? Dr. Anshu, would you like to tell us about this? Thank you, ma'am. आप हिंदी में भी बात कर सकती हैं बीच बीच में. Sure. So basically improvement of quality circles, the objective हमारा इसके लिए ये है कि हम अपने जो प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में यूजुअली हम सब सारी चीज़ों से इक्विप्ड होते हैं, बट चैलेंजेस हमारे प्राइवेट सेक्टर में आता है. प्राइवेट सेक्टर में जो मेन चैलेंजेस है वो हमारे
वर्किंग हैंड्स के होते हैं, प्लस उसके अलावा जो चैलेंजेस हैं वो स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ्स, दो सपोर्टिंग स्टाफ्स मीन्स पैरामेडिकल स्टाफ्स, गायनकोलॉजिस्ट के साथ साथ इन सबकी स्टाफ्स के भी नॉलेज अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। उस अपडेट के लिए हमें टाइम टू टाइम अपने गाइडलाइंस, जो भी हमारे गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनकी चेकलिस्ट एंड रूटीन वे में उनकी ड्रिल उस हॉस्पिटल या प्राइवेट सेक्टर के लिए ज़रूरी है। इसमें जो चैलेंजेस मेनली हमें फेस करना पड़ता है, उस चैलेंजेस में सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट्स आते हैं। रिसोर्सेज मीन्स कि हमें कई बार चीज़ें मालूम है लेकिन हम उसको इम्प्लीकेट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ हमारे पास वो ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो उस फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए क्या बेसिक भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स गवर्नमेंट के बने हुए हैं, उस प्रोटोकॉल को हम फॉलो करके उसको पूरा कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ चीज़ें चैलेंजेस में सिस्टमिक इश्यूज आती हैं, इनएफिशिएंसीज ऑफ द मैन पावर या द रेफरल सिस्टम, जहाँ की हमें एक जगह छोटे सेक्टर से अगर कोई पेशेंट सिक हो रहा है तो उसको बड़े सेंटर भेजना है, उसके लिए जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास नहीं होते। तो वो एक रिसोर्सेज जो है वो भी हमारे चैलेंजेस का एक पार्ट होता है, बट उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं वो उसके लिए भी हमारे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं। थर्ड जो हमारी चैलेंजेस हैं वो है कल्चरल एंड द सोशल बैरियर। कई बार स्टिग्मा होता है, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द पेशेंट की नहीं, हमें इनको नहीं भेज सकते या नहीं ले जा सकते। वहाँ हमारा काउंसलिंग का पार्ट आता है, और ये काउंसलिंग सिर्फ गायनकोलॉजिस्ट ही नहीं, आपके जितने भी पैरामेडिक्स, हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं, उनको भी ट्रेन करना होता है कि वो उसे कैसे काउंसिल करें ताकि वो वहाँ तक पहुँच पाएँ। और जो लास्ट बट नॉट लीस्ट कि ओवर बर्डन, बिकॉज हमारे रिसोर्सेज कम है, मैन पावर कम है, तो जो भी मैन पावर है वो काफ़ी बर्डन है और उनको जितना हमें काम उनसे लेना चाहिए वो उससे ज़्यादा ओवरवर्क्ड हैं। तो उनको कम करने के लिए अगर हम चीज़ें सिस्टमैटिक रखेंगे, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो हमारे प्रोटोकॉल्स या गाइडलाइंस बनी हुई हैं, नेशनल और इंटरनेशनल गाइडलाइन, उनके छोटे फॉर्म में उनको बहुत ही मिनिमाइज करके और हम एक प्रोटोकॉल बना सकते हैं अपने प्राइवेट सेंटर में, ताकि हमारा जो भी बेसिक प्रोवाइडर्स हैं उनको सबको पता हो कि इस प्रोटोकॉल से ही चलना है, और वो जब डेली बेसिस पे उसको प्रैक्टिस करेंगे तो वो उससे यूज टू हो जाते हैं, तो चीज़ें मिस नहीं होती हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने डॉक्टर अंशु, बिकॉज अनलेस वी ट्रेन आर पैरामेडिकल स्टाफ एंड आर पूरा स्टाफ जो है विद ऑल द प्रोटोकॉल्स, वी वोंट बी एबल टू गो अहेड। और बहुत अच्छे से आपने बताया चैलेंजेस क्या क्या होती हैं। सो आई एम श्योर दिस इज़ अ वेरी यूजफुल टॉक दैट यू हैव गिवन। थैंक यू। और अंशु आपने सही फरमाया कि वो जो चेकलिस्ट है और जो अल्गोरिदम्स है, प्रोटोकॉल्स है, इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल एंड इन इजीली रीडेबल फॉर्म। सो डॉक्टर श्वेता, वुड यू just inform us, can you elaborate on some of the tools that can be implemented during intrapartum care to improve quality of care? So, monitoring of labor and childbirth and early identification and treatment of complications are critical for preventing adverse birth outcomes. So, as we know that obstetrics is quite an unpredictable branch. Basically, our paramedics or midwife should be well aware that which labor is progressing well and which needs intervention, and that alarming sign should be given timely. Otherwise, the complications are inevitable and that will lead to increased maternal mortality. So, tools that are used to monitor labor progression, Friedman, he reported that cervical dilatation follows a sigmoid curve for most women, and his work is considered as the basis of 1 centimeter per hour rule. The rule is commonly used in clinical settings as the reference slowest yet normal cervical dilatation during active phase of labor, from onset of maximum slope to complete dilatation. Philpott and Castle, they developed Partograph. So this Partograph was developed right in early 70s. We all have done PGs in like late 90s and 2000s, but unfortunately I have seen that still, labor room staff, they avoid the use of Partograph. But if it would have been put in use, the outcome of delivery would have been much better. The Partograph is a graphic tool displaying length of labor in hours at the x-axis and cervical dilatation in centimeters at the y-axis. So the key features of this tool are the alert and action line. So एक midwife अगर Partograph maintain कर रही है तो she knows that when the alert needs to be given to the consultant and when is the time when action needs to be done. Key features of this tool I have already explained.
And O'Driscoll and colleagues, they propose the active management of labor. It is a package of interventions aiming at reducing the proportion of women with labor progressing at cervical dilatation rates lower than 1 centimeter per hour. So these are few tools with which we intervene during the child labor to prevent the morbidity and mortality. Thank you, Shweta. And on this basis, I think we can move on to the labor care guide. So, Alpesh, you wanted to ask something? No, that's it. You rightly mentioned that we should train our staff for the partogram. It's a very useful And easy. Yes, so this is a very important tool that we have, and that is the labor care guide. So, Dr. Ekika Singh, would you like to tell us what exactly it is, when should it be initiated, and कहाँ यूज कर सकते हैं ये? और आप भी थोड़ा बीच में हिंदी में भी बोल दीजिए प्लीज. एक्चुअली लेबर केयर गाइड एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल ऑफ असेसमेंट है, जिसके थ्रू हेल्थ केयर वर्कर एंड इवन पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो जो भी गर्भवती महिला है या उसके गर्भ में पलने वाला शिशु है, प्रसव के दौरान उसकी अच्छे से मॉनिटरिंग और डॉक्यूमेंटेशन कर सकती है. यही नहीं, इस गाइड के थ्रू वो ये समझ सकती हैं कितना ज़रूरी है सपोर्टिव 1-to-1 केयर देना किसी भी महिला को जो कि प्रसव के दौरान एक फेज से गुजर रही है. ये इमोशनल सपोर्ट उसकी बहुत हेल्प करता है एक सुखद डिलीवरी के एहसास के लिए. तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि एक सपोर्टिव जो एक हैंड टू हैंड केयर, पर्सनल केयर, एक इमोशनल टच उनके लिए बहुत मायने रखता है. यही नहीं अगर लेबर केयर गाइड के थ्रू हमें ये पता चलता है कि कब किस महिला में कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जिसको पहले से समझा जा सकता है और उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या हम यूज़ कर सकते हैं जिसे हम इस्तेमाल किया जा सकता है. तो इन सब चीज़ों को जानने से एक प्रॉपर केयर किसी भी गर्भवती महिला की प्रसव के दौरान होती है. अननेसेसरी इंटरवेंशंस को हम प्रिवेंट करते हैं. बहुत बार देखा गया है मैम कि अगर आप रूरल एरियाज़ में जाएं, ऑक्सीटोसिन का बहुत ही वाइड यूज़, बहुत एक्सेस यूज़ हो जाता है. पर वजाइनल एग्जामिनेशन पता चला कि हर सिस्टर जो जा रही है वो रिपीट कर रही है, हर चीज़ 1 घंटे में रिपीट हो रही है. तो जब लेबर केयर गाइड उनको बताई जाती है तो उसके अंदर जो प्रोटोकॉल्स है, जैसे कि बाकी पैनलिस्ट ने बताया, उसके इस्तेमाल से एक इंटरवेंशन कम किया जा सकता है जिससे इन्फेक्शन कम होता है और इवन पेशेंट को भी कम ट्रॉमा पहुंचता है. यही नहीं, दिस विल हेल्प अस टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट हु इज ड्यू इन लेबर. कहाँ कब करना चाहिए? लेबर केयर गाइड का इस्तेमाल हम तब शुरू करते हैं जब पेशेंट, कोई भी महिला एक्टिव लेबर में जाती है, दैट इज व्हेन शी इज 4 सेंटीमीटर डायलेटेड और मोर. किस जगह करना चाहिए? हर हेल्थ फैसिलिटी के अंदर इसका इस्तेमाल होना चाहिए और हर महिला, चाहे वो प्राइमी ग्रेविडा हो या मल्टी ग्रेविडा हो, उसके लिए इस गाइड का हमें इस्तेमाल करना चाहिए. थैंक यू. एकिका, सिंस आप इसके बारे में बता ही रहे थे, सो व्हाई डोंट यू आल्सो टेल अस हाउ डू यू इंश्योर सिस्टमैटिक एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस लेबर केयर गाइड? क्योंकि अगर आप बता रहे हो ना कि ये इस्तेमाल करना ज़रूरी है, तो देयर इज अ डेफिनेट काइंड ऑफ बेसिकली ड्यूरिंग द लेबर पार्टोग्राम इज समथिंग व्हिच वी शुड टीच इवन द पैरामेडिकल स्टाफ. उसके अंदर असेसमेंट, फर्स्ट असेसमेंट ऑफ द पेशेंट, देन द रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट एंड रिकॉर्ड के हिसाब से रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट. ब्यूटीफुली अगर उसको हम करते हैं कि इस समय पे हमने ये रिकॉर्ड किया, सपोजिटली 4 सेंटीमीटर पे आपने पहला असेसमेंट किया है पेशेंट का, देन उसके बाद हर घंटे पे उसका बीपी का मॉनिटरिंग, हर 15 मिनट पे एफएचएस की मॉनिटरिंग और मे बी 4 घंटे के बाद वेजाइनल एग्जामिनेशन. जिससे एक एक्शन लाइन या अलर्ट लाइन जो है आपके पार्टोग्राम पर आती है और उसके थ्रू आप अपने सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन को या जो भी हेड है उनसे कनेक्ट होके पेशेंट का प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग अननेसेसरी इंटरवेंशन टू द पेशेंट. एब्सोल्युटली, जो आपने बताया बिल्कुल सही है. बिकॉज जब ये पार्टोग्राम फॉलो करेंगे, ये लेबर केयर गाइड फॉलो करेंगे, तो हम सही माने में कब इंटरवेंशन करना है, क्या करना है, वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है. थैंक यू वेरी मच. Richa, let us discuss about, can you elaborate on the part respectful maternity care plays in the spectrum of quality of care during childbirth? So, respectful maternity care encompasses respect for women's front in all directions, say
उस इन्फ्लुएंस फीलिंग्स, उसकी कुछ कल्चरल बिलीव्स हैं, कंसेंट लेना, इट इंक्लूड्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर। WHO ने भी इस पर बहुत ध्यान देना शुरू किया है, क्योंकि देखिए अमूमन तौर पर डिलीवरी अपने आप में एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। उसमें ना केवल उस प्रसव के दौरान जो वो पीड़ा से गुजरती है माँ, उसमें अगर हम उसे और कोई ऐसा सपोर्ट प्रोवाइड करें जिससे वो थोड़ी कंफर्टेबल हो जाए। जैसे इंडिया में कितने कल्चरल बिलीव्स हैं डिलीवरी को लेकर, बर्थिंग पोजीशंस को लेकर एंड बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें अगर हम उनकी कुछ कल्चरल बिलीव्स को अपने साइंस के साथ इंटीग्रेट करें और अलाउ करें, तो कहीं ना कहीं वो माँ, वो महिला और उसका परिवार भी कंफर्टेबल होता है। सेकेंडली, कंसेंट हमें सिखाया गया है, सभी को हम बताते हैं, बहुत ज़रूरी है। आपको पता है आप इंटरनल PV एग्जामिनेशन करने वाले हैं, बट before doing any examination, it is important to tell and ask that we are going to do this for you. It not only involves taking consent but also maintaining the privacy and confidentiality. Hippocrates oath की वैल्यू हम सब डॉक्टर समझते हैं। सो प्राइवेसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट के किसी वो लेबर के दौरान जो भी चीज़ें हो रही हो, उसके बाद भी जो इच्छाएं होती है उसे हमें बहुत रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है। ऑल्सो इट इंक्लूड्स लॉट ऑफ अदर थिंग्स लाइक, अगर उस महिला को किसी एक घर के ऐसे व्यक्ति या रिलेटिव के खड़े होने से लेबर के दौरान संबल मिलता है या उसे लगता है कि उसकी माँ जैसे, यस, सो वो हम बेशक हमें अलाउ करना चाहिए कुछ समय उसको। वी हैव टू मेक श्योर दैट हर एंटायर डिलीवरी प्रोसेस इज स्मूथ, नॉट इन जस्ट इन टर्म्स ऑफ पेन मैनेजमेंट बट इट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट। अल्टीमेटली इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस एंड सो दैट उसको हर बर्थिंग एक्सपीरियंस शुड बी सच दैट इट शुड नॉट गिव हर अ ट्रॉमा फॉर लाइफ कि ये मेरे साथ क्या हो गया। तो गिविंग रिस्पेक्ट इन एवरी फील्ड। So Richa, you have nicely covered all the aspects, and I would say there should be no verbal abuse, there should not be any physical abuse as well as abuse related to cost. Absolutely. डॉक्टर प्रीति, रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर के बारे में तो हम बात कर रहे हैं, बट कैन यू टेल अस व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, मतलब एग्जैक्टली कैसा कर सकते हैं वो? इट इज़ एक्सटेंडेड टू काउंसलिंग, इट इज़ ऑल्सो एक्सटेंडेड टू गिविंग पोस्टमार्टम फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। थोड़ा सा इसके बारे में हमको बता दीजिए। धन्यवाद सुचित्रा जी, आपने ये सवाल पूछा। जैसा कि ऋचा ने अभी बहुत अच्छे से समझाया है, क्योंकि मकसद ये होता है कि जब हम कोई भी महिला को डिलीवरी कराते हैं या उसकी बर्थ होती है किसी सेंटर पे, तो उसको एक पॉजिटिव चाइल्ड बर्थ एक्सपीरियंस देना है। बिल्कुल। तो चाइल्ड बर्थ एक्सपीरियंस अगर उसका पॉजिटिव होगा तो वो उसमें रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर का कंपोनेंट जब तक नहीं डालेंगे तब तक वो पॉजिटिव चाइल्ड बर्थ एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो काफ़ी कुछ हम लोग अभी इस पैनल के दौरान डिस्कस कर चुके हैं कि रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर क्या है। पोस्टपार्टम पीरियड एक बहुत इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है, क्योंकि कई बार हेल्थ केयर वर्कर्स या डॉक्टर्स रिलैक्स हो जाते हैं कि डिलीवरी हो गई है, अब चलो ठीक है। तो इसके बाद बहुत क्रूशल टाइम है, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं जो गर्भधारण के बाद, डिलीवरी के बाद उनकी डेथ होती है, 48 आवर्स बहुत क्रूशल होते हैं। और जितने भी हमारे इंडिया के स्टैटिस्टिक्स हैं उसमें बच्चों की भी जितनी मृत्युएं होती हैं वो भी एक दिन में होती हैं, ज़्यादातर या तो एक दिन में होंगी या 7 दिन में होंगी। तो ये पीरियड हमारे लिए बहुत क्रिटिकल होता है। तो हमें एक तो सेफ चाइल्ड बर्थ चेकलिस्ट है, बहुत अच्छी चीज़ है, इसको फॉलो करना चाहिए, सब चीज़ें देखनी चाहिए, और हमें माँ का और साथ साथ बच्चे का भी ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। और एक चीज़ और जो बताना चाहूँगी मैं यहाँ पे, जो सबने बात करी है, मेंटल हेल्थ ऑफ द मदर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल सही। क्योंकि आज ये मुद्दा ये उठ रहा है रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर का, तो वो कहीं ना कहीं हम लोग मेंटल हेल्थ की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ अगर मदर का अफेक्टेड होगा, और ये स्क्रीनिंग एक बार हमें डिलीवरी के पहले, एक बार एंटीनेटल केयर में और एक बार उसके बाद भी करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि इससे मैटरनल और चाइल्ड बॉन्डिंग बढ़ती है, बच्चे का केयर बढ़ता है, फैमिली आउटलुक बढ़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर से जुड़ी हुई हैं। तो मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोस्टपार्टम डिप्रेशन बहुत कॉमन है और इसमें महिलाएं बहुत अपने आप को हार्म पहुंचा लेती हैं और दिक्कत करती हैं। इसके साथ साथ हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को पता होना चाहिए कि माँ को हमें कैसे देखना है। डिलीवरी के बाद टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बेसिक है और जो हम लोगों से छूटता है। सिंपल पल्स देखना, उसका बीपी देखना, एक सिंपल यूट्रस पे हाथ रखना, उसके ब्रेस्ट के बारे में उससे पूछना फीडिंग सही करा रही है। सबसे ज़्यादा जो हम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग 1 घंटे के अंदर या एज अर्ली एज पॉसिबल वो शुरू कर दें।
इसी तो लिक्विड गोल्ड बोलते हैं इसी को कहते हैं। और लेकिन क्या होता है, ये काउंसलिंग हमें पहले से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग एग्जैक्टली मेथड क्या होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे फीड कराना है बच्चे को ये इंपॉर्टेंट है, कब कब फीड कराना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेस्ट मिल्क क्यों बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़रूरी है। माँ की ओवरऑल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, फीवर तो नहीं है, यूट्रस सही है, नीचे लोकिया जो डिस्चार्ज होता है वो बदबूदार तो नहीं है, उसमें स्मेल तो नहीं आ रही है, कभी कभी टाँके आते हैं नीचे डिलीवरी पे, तो वो देखना है कि वो हेल्दी है कि कहीं कोई और दिक्कत तो नहीं है। और बच्चा भी कलर उसका ठीक है कि नहीं, टेम्परेचर तो नहीं है, सांस ठीक से ले रहा है, बच्चा फीडिंग ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बच्चे ने स्टूल पास किया, यूरिन पास किया, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें 48 आवर्स में देखनी है। इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये रिवर्ट कर जाती है फर्टिलिटी 4 to 6 वीक्स में, तो जब माँ घर जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा फिर वो जल्दी प्रेग्नेंट होके आ जाए, तो वो परिवार के लिए भी ठीक नहीं है, माँ के लिए भी ठीक नहीं है, उस बच्चे के लिए भी ठीक नहीं है। तो फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग हमें शुरू तो कर देनी चाहिए एंटीनेटल पीरियड से, लेकिन अगर वो नहीं कर पाए हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को नहीं मिस करना चाहिए। 48 आवर्स आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, जब आप कुछ मेथड्स ऐसे बता सकते हैं जो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। पोस्टपार्टम IUCD होती है, सिंपली आप डाल देते हैं, इसकी स्किल ट्रेनिंग्स करी जाती हैं और बताया जाता है। कुछ पिल्स हैं जो हम लोग सेफ हैं, वो बताई जाती हैं, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स। अगर 4 महीने खाली माँ बच्चे को दूध ही पिलाती रहे वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रासेप्शन होता है बीच में, क्योंकि कुछ ये धारणाएं हैं कि बच्चे को शहद पिलाना, जर्म गुट्टी देना, ग्राई वाटर देना, ये सब चीज़ें बिल्कुल ही बहुत अच्छे से माँ को समझानी चाहिए कि फीडिंग कैसे करानी है, बर्पिंग कैसे कराना है, बच्चे को कैसे लिटाना है, उसको साइड लिटरल में बच्चे का मुंह नहीं ढकना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शायद बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, और ये सब चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए। और अगर वो उस समय नहीं लेना चाहती किसी कारण, जैसे रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर, उसकी चॉइसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो कह रही है हमें नहीं लेना है अभी, तो उसको ये बताना है हमें कि बास्केट ऑफ चॉइसेस हैं, इसमें आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप कंट्रासेप्शन की बात करिए, कोशिश करिए उसके हस्बैंड रहें, जिससे वो भी समझ पाएँ अच्छे से कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, और उसको फिर आप 6 वीक्स के बाद और कंट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जो आप दोबारा बुला सकते हैं और बता सकते हैं। एटलीस्ट 1 साल तक तो दोबारा बच्चा नहीं आना चाहिए। तो ये एम रहता है कि एटलीस्ट स्पेसिंग 2 साल की रहे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट 1 साल की तो ज़रूर होनी चाहिए। तो कंट्रासेप्शन हम लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपनी कंट्री में शायद बहुत नेग्लेक्टेड है। तो आपने जो बिल्कुल सही बात बताई कि apart from respectful maternal care, you have to even discuss about the breastfeeding aspects and about the contraception, and even if you've talked about it in the antenatal period, this is one time कि दोबारा बात करो, शायद कुछ मतलब परिवर्तन हो जाए, और there are so many contraceptives available। ये बिल्कुल सही बात आपने बताई। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रिचा, जरा आप सबको ये बताएंगे व्हाट आर सम ऑफ द क्रिटिकल पेरिनेटल रिस्क फैक्टर्स टू असेस? सर देखिए, आप हम सभी जानते हैं नॉर्मली मोस्टली न्यूबॉर्न्स जो हैं उसमें से 85% न्यूबॉर्न्स को इंट्रायूट्राइन से एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में ट्रांजिशन करने में बहुत तकलीफ नहीं होती। नॉर्मली कॉट क्लैम्प के डीलिवरी हुई बच्चा रोने लगता है। 10% ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जब तक आप पीडियाट्रिशियन ड्राई कर रहा है, थोड़ा स्टिम्युलेशन देगा, तब वो फिर उनकी वेंटिलेशन स्टैब्लिश हो जाता है, लंग फंक्शन स्टैब्लिश हो जाता है। 5% जो बच्चे बचते हैं यूजुअली उनमें कोई अपने को इंटरवेंशन करने की नौबत आती है, चाहे चेस्ट कंप्रेशंस देना पड़े या वो बच्चे वेंटिलेट हों। हमारी तरफ से न्यूबॉर्न रिससिटेशन या क्रिटिकल केयर जो बोलें, या बच्चा पैदा होने के बाद जो डिलीवरी रूम में जो चीज़ें होनी चाहिए एसेंशियली, वो है एक न्यूनेटल रिससिटेशन चार्ट लगा हुआ होना चाहिए, जिसकी प्रैक्टिस डॉक्टर्स, पीडियाट्रिशियंस, पैरामेडिकल हेल्प, नर्सिंग सभी को आना ही चाहिए। सेकेंडली, हम जो अपनी तरफ से कर सकते हैं इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने की जो सारी चीज़ें हम करते हैं अपने लेबर रूम में, राइट फ्रॉम सेकेंड स्टेज टू हैंडलिंग ऑफ द न्यूबॉर्न। न्यूनेटल हाइपोथर्मिया हम सब ने सुना है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम वार्म टॉवेल रखें और रूम का एनवायरनमेंट बहुत ठंडा न रखें। एंड लो बर्थ वेट या प्रीटर्म बेबीज़ जब हम हैंडल कर रहे हैं तो उसका स्पेशल केयर, स्पेशल ध्यान रखना। एंड वी ऑल हैव लर्नड एंड रेड अबाउट अपगार स्कोर वेरी वेल। इसे गोल्डन फर्स्ट मिनट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो पहला मिनट है, अगर इसमें आपने वो सारी चीज़ें कर ली जो आपको एक न्यूबॉर्न को उस वक्त करनी चाहिए, तो लॉन्ग टर्म आउटकम्स देखा गया है कि वो मच बेटर है।
and also delayed cord clamping, even strategizing the care in terms of newborn screening कि कौन सा high risk neonate होगा, कौन सा नहीं होगा, and keeping our co-worker, co-team informed कि जब हम कोई ऐसा high risk बच्चा develop कर रहे होते हैं तो हमारा neonatal resuscitation unit including the pediatrician's thought process this can go haywire. Everything should be well prepared in a delivery room. Foxy भी ये बोलता है कि हमें हमारे बेसिक लेबर रूम सेटअप में न्यूनेटल रिससिटेशन चार्ट, अपना जो केयर होता है न्यूबॉर्न केयर व्हेन इट कम्स टू इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड एवरीथिंग, वी शुड बी वेल इक्विप्ड व्हेन कमिंग टू एंड डीलिंग विद इन अ न्यूनेट. So Richa, you have nicely covered all the aspects. Can you also brief about role of vitamin K? Yes sir, it should be mandatory. It is being given and everybody has been doing that in their practice. सभी को लगना चाहिए. And Richa has also brought it on a very important point that delayed cord clamping, because that extra blood that goes to the baby is very, very important in improving the hemoglobin. Wait for the cord pulsations to cease, and Foxy also endorses this statement. Very nicely spoken. Dr. Anita ji, अब आप हमको बताएंगे what is the role of breastfeeding in neonatal care? I think अभी डॉक्टर प्रीति जी ने भी बहुत कुछ इसके बारे में बोला. As we know, breastfeeding is the foundation of life. बिल्कुल. Because जो स्त्रियां स्तनपान को बर्थ होते ही बेबी के 1 घंटे के अंदर शुरू करा देती हैं, उनका बेबी भी स्वस्थ रहता है और माँ भी स्वस्थ रहती है. और स्पेशली आप ही ने बोला लिक्विड गोल्ड, तो जो पहला दूध होता है जिसको कि हम कोलेस्ट्रम भी बोलते हैं, उसमें इतने तत्व होते हैं जो इतनी सारी बीमारियों से बचाते हैं. तो दे एक्ट लाइक वैक्सीन, सो दे प्रिवेंट द चाइल्ड फ्रॉम वेरियस डिजीजेज लाइक डायरिया, pneumonia and many other diseases which may even cause death. So that milk is very important, and if the woman is aware of it, she will definitely do and give benefit to her child. And also ये जो दूध है breast milk, ये संपूर्ण खुराक होती है क्योंकि ये पूरी इसके अंदर एनर्जी होती है एज वेल एज इसमें पूरा न्यूट्रिशन होता है. सो अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की जाती है पहले 6 महीने में, जिसका मतलब होता है कि दिन में 8 से 10 बार मिनिमम माँ दूध पिलाए और रात को भी 1 बार कम से कम पिलाए, तो उस एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे को बहुत लाभ होता है क्योंकि उसको इवन एनीमिया से, रिकेट से, ऐसी बीमारियों से भी बचाया जाता है. और जैसे कि हमने बोला कि तुरंत ही बच्चे को डाल दो, फर्स्ट आवर में, रादर फर्स्ट मिनट में ही क्रॉल करके बच्चा ब्रेस्ट पे जाता है, तो माँ और बच्चे का एक बॉन्ड भी बहुत अच्छा बन जाता है. तो एक साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग एंड लव that develops between them, and also intelligent quotient that and the emotional quotient of the child also improves with that. और अक्सर ये देखा जाता है ना, सिजेरियन सेक्शन के बाद माताएं काफ़ी बार दे आर लिटिल वरीड अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग. कुछ उसके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस, पोजीशंस वगैरह आप उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल. बट अगर हमने माँ को पहले से एंटीनेटल में अगर काउंसिल किया है तो इवन आफ्टर सिजेरियन she can even breastfeed normally also. Absolutely. And with the help of somebody, जैसे आजकल तो birth attendant भी साथ ही होता है, या with the help of nurse, so various postures can be given to her and she can easily feed the child. And but she has to be counseled कि 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार भी वो ट्राई करेगी अल्टीमेटली दूध आएगा एंड उसको अपना वो कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है. सो सिजेरियन वालों को इसीलिए हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट 1 आवर में कर ले, बट अदरवाइज नॉर्मल डिलीवरी में तो इवन विद इन अ मिनट और 2 दे कैन डू. और आजकल तो सिजेरियन होते भी वो बच्चे को माँ के ब्रेस्ट के साथ लगा देते हैं. एब्सोल्युटली, सो गुड. सो एक पॉइंट शायद और ऐड करना चाहेंगे कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जब डिलीवरी के पास ज़रूर कर लेना चाहिए क्योंकि कई बार इन्वर्टेड निपल्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो टाइम आपका वेस्ट ना हो, तो लैक्टेशन में दिक्कत ना हो. एक वो बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा बहुत अच्छे से अनीता जी ने बताया, इसमें शॉर्ट टर्म के अलावा बहुत लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं बच्चे को और माँ को भी बेनिफिट. जैसे डायबिटीज़ है माँ को तो वो आगे नहीं होगी, देर से होगी, बच्चा भी सुरक्षित रहता है. ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो वो भी माँ रिस्क पे रहती है, बच्चा भी रिस्क पे रहता है. IUGR बेबीज हैं वो भी आगे लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस, तो वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जो बताना चाहूँगी कि कुछ बच्चे बहुत कमज़ोर पैदा होते हैं, जो वेट कम होता है उनका, तो जो सबसे ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट. तो जितनी जल्दी वो कंगारू मदर केयर जो हम लोग कहते हैं, ब्रेस्ट से लगा के, छाती से लगा के रखे, और उससे बहुत जल्दी रिकवरी बच्चों की होती है, उनका हॉस्पिटलाइजेशन कम होता है, उनका ग्रोथ. और एक तो स्टडी बहुत अच्छी आई, आप बच्चे से जितना ज़्यादा बात करेंगे
उतना बच्चे की रिकवरी फास्ट होगी, क्योंकि इमोशनल बॉन्डिंग होती है, बच्चा सुनता है, आई टू आई कांटेक्ट माँ से करता है, तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी बच्चे की होती है। तो दीज आर ऑल स्टडीज विच आर गोइंग ऑन, अच्छी स्टडीज हो रही हैं माँ और बच्चे की बॉन्डिंग के लिए। तो ये बहुत लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड जो कि हम कॉन्ट्रसेप्शन के लिए। हाँ, पर तो अनीता जी एक और contraception। बात बताइए ज़रा, जब माँ जब डिस्चार्ज हो जाती है तो ब्रेस्ट केयर कैसे स्पेसिफिकली बताएं? प्रीति जी ने तो बाकी सारी पोस्ट नेटल केयर की बात बता दी, पर ब्रेस्ट केयर के लिए स्पेसिफिक कुछ ब्रेस्ट केयर में उसको हमेशा ब्रेजर पहन के रखना चाहिए, वो एक तरह से ब्रेस्ट का सपोर्ट रहती है। एंड उसको मदर को जब फीड करना है बच्चे को, तो एक ब्रेस्ट पूरी एम्प्टी कर दें, उसके बाद सेकंड ब्रेस्ट को देना है, क्योंकि ब्रेस्ट में भी 2 मिल्क होते हैं, एक फोर मिल्क और एक हाइंड मिल्क। फोर मिल्क में मोस्टली प्रोटीन है और हाइंड मिल्क में फैट है, तो वो बच्चा भी स्वस्थ रहता है और माँ को फिर ब्रेस्ट एब्सेस भी नहीं बनती, ना उसके ब्रेस्ट टाइट होती है, तो इन प्रॉब्लम से। प्लस उसको फीडिंग की अगर टेक्निक प्रॉपर पता है कि वो निप्पल को पूरी तरह से एरोला तक बच्चे के मुंह में डालता है, तो उसकी निप्पल बाइट्स भी नहीं होती। सो इन चीज़ों से भी उसको प्रिवेंशन है। और काफ़ी बार ना माओं को थर्ड फोर्थ डे ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट जब होता है तब पेन काफ़ी होता है, तो वो डर जाती हैं, तो उसके लिए एनी स्पेसिफिक एडवाइस विच दे आर रियश्योर्ड? प्रीति और अनीता कोई भी एक बोल लें। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्रेस्ट केयर, जैसा अनीता जी बता रही थी। ब्रेस्ट के थोड़े कॉम्प्लिकेशंस होते हैं मदर में, अगर ठीक से फीडिंग नहीं हो रही हो या माँ ठीक से पिला नहीं पा रही है, बच्चा ठीक से पी नहीं रहा है, तो उसमें कई बार माँ को ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट होता है और फीवर बहुत आता है, गांठें पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से माँ भी परेशान होती है। ये नहीं समझ में आता है कि हम इनको फीडिंग कराएं कि नहीं कराएं, तो उनको ये एश्योरेंस देना होता है कि एंगॉज ब्रेस्ट है, अगर नहीं पी पा रहा है तो एक्सप्रेस आउट कर दीजिए, उसको निकाल दीजिए, जिससे एंगॉजमेंट कम हो, बर्फ से सिकाई कर लीजिए, जिससे कि आपको आराम मिले। तो ये सब चीजें हम लोग उनको बताते हैं। दूसरा, बहुत बार क्या होता है कि निपल्स जैसे बहुत रिट्रैक्टेड है, नहीं ठीक से बने हैं, या बहुत बड़े हैं या छोटा है, तो कई बार लोग ना बहुत क्रीम चीजें लगाने लगते हैं, तो वो सब चीजें नहीं लगाना चाहिए। क्लीन कर लेना चाहिए ज़रूर, एक पानी से, सिंपल वाटर से आप क्लीन करके तब बच्चे को फीड कराइए। बहुत छोटी छोटी सिंपल चीज़ें हैं जो हम लोग बताते हैं। और मतलब सिर्फ यही एक इनको और बताना ज़रूरी है कि अगर बुखार आने लगेगा या तो ब्रेस्ट में लाल टेंडरनेस होने, इन्फ्लेमेशन, डॉक्टर को ऑलवेज कंसल्ट डॉक्टर टू सी। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कभी कभी हम लोग बताते हैं ब्रेस्ट कॉर्नर, ब्रेस्ट फीडिंग कॉर्नर्स हॉस्पिटल में बना देते हैं, जिससे एंटीनेटल पेशेंट जब आती है, जब गर्भवती महिला आती है, तो वहीं से दिखाना शुरू कर देते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग कॉर्नर एक बना दिया जाता है हॉस्पिटल्स में, तो वो देख सकें कि कैसे ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। लास्ट में एक कमेंट कि हमें हेल्थ केयर वर्कर को ये भी सिखाना चाहिए कि रेयरली कभी किसी मदर को नहीं भी आता है ब्रेस्ट, तो शी शुड नॉट फील गिल्टी। उनके साथ ऐसे व्यवहार नहीं होना चाहिए कि कुछ कुछ बहुत बड़ी कमतरता है। उनको अदर मेथड्स जो भी अवेलेबल, जो भी कैसे करना चाहिए, उसके बारे में भी ट्रेनिंग देना चाहिए। प्लस दे कैन इवन एक्सप्रेस मिल्क, कई जो जैसे टीचर्स वर्किंग लोग हैं, बच्चे को नहीं दूध दे सकते, तो वो एक्सप्रेस करके रख सकते हैं और उसको बच्चे को कटोरी और चम्मच के साथ वो दूध दिया जा सकता है, क्योंकि वो 4 घंटे तक भी आराम से रहता है। और अगर रेफ्रिजरेट करो तो आप 24 आवर्स तक भी उसको रख सकते हैं। और एक कुछ महिलाओं में क्या होता है कि ब्रेस्ट मिल्क का एक्सक्रीशन थोड़ा लेट आता है, समटाइम्स 3rd डे 4th डे आता है, कभी-कभी 7 दिन भी लग जाते हैं। तो मैम उनको यही बताना है कि घबराना नहीं, थोड़ा सा सगलिंग कराते रहिए, थोड़ा सा मसाज करते रहिए, और इवन थोड़ा भी जो आ रहा है, बिकॉज दे समटाइम फील दिस कि अरे बच्चे का तो पेट ही नहीं भरेगा, बहुत थोड़ा सा ही आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बहुत कम ही आ रहा है, तो उनको ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि रिपीटेड आपको चाहे फीड कराने हो, बेबी का पेट जो है बहुत छोटा होता है, तो उतना भी जो है ब्रेस्ट मिल्क उसके लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसको छोड़े ना, और उसके चक्कर में दूसरा जो है आप बॉटल फीड ना शुरू करना शुरू करें, थोला पेशेंस रखें। एब्सोल्युटली राइट। सो आई थिंक पॉइंट्स होते हैं जो हमें बताने होते हैं कि अगर बच्चा ने दूध उसको काफ़ी सफिशिएंट है, अगर वो बच्चा 4-5 बार पेशाब कर रहा है और वो अच्छे से सो जाता है, एक्सेसिव क्राइंग नहीं करता है और सेटिस्फाइड है, तो फिर हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। सो आई थिंक वी हैव गिवन अ वेरी गुड कवरेज ऑफ द ब्रेस्ट केयर कैसा करना है। सिर्फ 2 बातें बिफोर वी फिनिश इज वैक्सीनेशन भी बच्चों के लिए इस समय बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, और जिस माँ को ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ हुआ हो तो फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है। बट आई थिंक ऑल द पैनलिस्ट्स हैव डन वंडरफुली वेल एंड बहुत अच्छा मैसेज दिया सब हेल्थ केयर वर्कर्स को। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल द एक्सपर्ट्स फॉर गिविंग वंडरफुल explanation.
And Please this give is big hand to all the panelists. and again thanks to the Aduna project. Thank you for the मैं डॉक्टर अल्पेश गांधी और मैं डॉक्टर सुचित्रा पंडित, thank you very much for making us a part of this program. Signing off for today. Thank you very much. Signing off for Thank you very today. much. Thank